A very warm welcome to everyone present here. This lecture is a part of our Cyber Shakti certificate course, an initiative specifically designed to promote digital safety, empowerment, and informed engagement among women in the digital space. Through Cyber Shakti, we aim to deliver crucial awareness, legal insights, and practical defense strategies against modern digital vulnerabilities. I am Syed Abdul Sami, and it's my privilege to anchor today's session. Today's topic of discussion is social media privacy and digital boundaries. If you're ready to begin this journey, type ready or show your enthusiasm with a thumbs up emoji in the chat. It is my privilege and honor to introduce today's esteemed speaker, Mrs. Shonal D, a dedicated cybersecurity awareness speaker and cyber psychology practitioner. She has been actively working in the field of cyber awareness, focusing on cybercrime awareness, child sexual abuse material, women and child safety, AI related threats, and digital security. Through impactful awareness sessions and training programs, she has continuously empowered individuals with knowledge and confidence needed to stay safe in the digital world. Her work strongly emphasizes responsible technology use, digital well-being, and the creation of a safer online space for everyone. We're truly honored to have her with us today to guide us through the important session on social media privacy and digital boundaries. Please join me in extending a very warm welcome to Ms. Shonal D. Ma'am. Ma'am, the mic is yours. Uh, Hello, good evening to everyone, and thank you, Mr. Abdul Shami, for very beautiful that. So, just a thing, Nux Foundation is really doing very good or great work. And in this digital era, we all are using social media frequently, daily. और कितना हम फोन यूज करते हैं, we can't even think. If we check that, I hope, yeah, I think it will be plus 5 hour daily. It's a minimum time. So I would like to share some. I have sent request to share my content. Please. I have accessed that. I hope my screen is shared. Yes, ma'am. All right. So, warm welcome to all of you. And this presentation is used open source content, AI generated content, basically for educational based. And this is about me. I think my. Okay, so it's me. Introduction already दे चुके हैं मेरा. So I'm Sonal, and I'm women brand ambassador for Cybersecurity Association of India and also practitioner cyber psychologist. So coming to the topic, so topic is social media privacy and digital boundaries. So please confirm if Hindi, English both is comfortable for participants. Please confirm anyone. Yes, ma'am. All right. So इन द डिजिटल एज विमेन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी डिजिटल बाउंड्री और सोशल मीडिया प्रिवेसी को हम कैसे सेट करें, जिससे हम अपना जो सोशल मीडिया है या फिर डिजिटल लाइफ है वो सही तरीके से यूज कर पाए और किसी भी तरह का स्कैम या फिर एनी काइंड ऑफ हरासमेंट भी हमें फेस ना करनी पड़े. सो दैट्स द टॉपिक एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ऑल. And I hope you will like learn something from this.
So if I talk about cyberspace, all things which we are doing in internet, like surfing, Facebook, LinkedIn, or Instagram, anything can be uh, count in cyberspace. So basically, cyberspace is all things which are doing in the internet or in the social media, whatever we are doing in internet, surfing or downloading, whatever. So this all comes under cyberspace. So वी आर लिविंग इन टू स्पेस. एक होता है फिजिकल स्पेस जिसपे हम रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, घूमते हैं, एंड सेकंड इज साइबर स्पेस. सो साइबर स्पेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ. हमारी डिजिटल आइडेंटिटी और हमारा जो एक रेपुटेशन है वो हमारे ऑनलाइन वर्ल्ड पे भी है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे या फिर फेसबुक पे हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारा नाम है, हम जो भी पोस्ट करते हैं उसके थ्रू हमारी एक इमेज भी बनती है. सो हमें वो भी इमेज मेंटेन करके चलनी होती है, हम कुछ भी पोस्ट नहीं करते हैं. सो दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ. So there is one, actually three questions in front of you. So have you ever received this kind of notification like highly paid job offer? Yeah, your OTP for account verification is something, और whatever it is, लास्ट वाला हम बाद में बात करेंगे. बट आई थिंक जॉब के ऑफर तो सबको रिसीव हुए होंगे. एनीवन रिस्पॉन्स करेंगे? आप लोग जॉब के ऑफर आप लोगों को आए हैं? एक्चुअली आई कांट रीड दैट चैट, तो आप लोग प्लीज अनम्यूट करके बोल सकते हैं. Yes, ma'am. Yes, Many ma'am. times we receive such messages, but we do not respond to such messages. दैट्स गुड. सो आई थिंक सबको ये ऑफर्स तो रिसीव होते हैं. अब कोई जॉब करे या नहीं करे वो उनके ऊपर है, टोटली अप टू यू. So if you are receiving that kind of notification or that kind of messages, so ये प्रूव करता है कि आप लोग एक डिजिटल एरा में या फिर किसी भी तरीके के सोशल नेटवर्किंग में इस तरह का जॉब ऑफर अगर आपको आता है, सो यू ऑल्सो वनरेबल. अगर आप क्लिक करते हैं या ज्वाइन करते हैं या आपके घर में कोई भी ज्वाइन करता है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी कंसर्निंग थिंग्स. सो लेट्स सी. So basically, if I talk about cybercrime, so basically these are trending. First is trading investment using deep fake. आप लोगों ने बहुत बार न्यूज में पढ़ा हुआ होगा कि निर्मला सीतारमण जी ने कुछ स्कीम निकाली हुई है और वो कह रही हैं कि 30 डेज में आपके पैसे डबल हो जाएंगे. डिजिटल अरेस्ट, फेडेक्स का यूज नाम लेके, आधार का मिस यूज किया गया है, या ड्रग्स को लेके, या पॉर्न, लाइक पॉर्न थिंग्स यूज करके आपने देखा हुआ है कुछ ऐसी चीजें. सो इस तरह से भी काफी ज्यादा क्राइम हम डेली पढ़ते हैं या डेली फेस करते हैं. ऑनलाइन टास्क, जॉब, वर्क. Excuse me, ma'am. क्या? यस If प्लीज. possible, can you kindly turn on the camera, ma'am? Actually, I have already told that I am not I'm out of station, so it's network is very low, so I No can't. worries, ma'am. Thank you. Sorry for that. I'll No try. worries, ma'am. So, बैक टू द टॉपिक. सो ऑनलाइन टास्क जॉब या वर्क फ्रॉम होम के नाम पे बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं. ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग, ब्लू टिक, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया हैं जिसपे बोलते हैं कि ब्लू टिक आपको मिलेगा, वेरिफिकेशन लिंक दी जाती है, आप उसको क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको ब्लू टिक मिल जाएगा. शायद कुछ पैसे भी ये लोग लेते हैं, ऐसे भी फ्रॉड हो रहे हैं. सीजनल फ्रॉड जिसे हम बोलते हैं, आईपीएल टिकट्स या फिर कोई कॉन्सर्ट होता है उसके काफी सारी वेबसाइट ऐसे फ्रॉड बनती हैं जिसपे काफी लोग फंस जाते हैं. ई कॉमर्स के नाम पे तो डेली फ्रॉड्स हो रहे हैं. लोग ऑर्डर करते हैं कपड़े या सामान कुछ भी, एंड इट्स ऑल्सो ट्रेंडिंग साइबर क्राइम. एंड लास्ट इज अकाउंट हैक और अकाउंट टेक ओवर और फेक अकाउंट. सो आई विल एक्सप्लेन इट. सो एक रिसेंट केस लेते हैं हम. सो समवन सेंट like this message to me, like Dr. Dev Patel naam tha, and he sent a message to me that you are beautiful, that kind of like praise करते हैं ये लोग. And I haven't respond him, and I have just searched his profile कि profile check करते हैं. I will show कि कैसे check करते हैं. सबसे बड़ी चीज होती है, फेक प्रोफाइल बहुत ज्यादा बन रही हैं. लोग फैंसी नाम यूज करके डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई फॉरेनर ऐसा फोटो फैंसी सी लगा लेते हैं और उसके बाद रीच आउट करते हैं.
इफ आई नो दैट ऐसी चीजें हो रही हैं एंड आई हैव सर्च दैट, तो मैं तो बच गई, बट अगर किसी को नहीं पता है तो वो शायद इन ट्रैप में आ जाए दैट थैंक यू सो मच, और उसके बाद कंटिन्यू बातें होने लगती हैं, थोड़ा बहुत शेयरिंग होने लगती है। सो व्हेन आई सर्च इन गूगल कि ये प्रोफाइल पिक्चर और कहाँ यूज हुई है, देन आई फाउंड दैट इन लिंक्डइन, एंड लिंक्डइन पे कोई और नाम था। सो आई हैव टेकन स्क्रीनशॉट एंड आई सेंड दैट डॉक्टर देव पटेल टू, कि ये प्रोफाइल जो है ये है। देन ही ब्लॉक्ड मी। दैट्स व्हाई फेक प्रोफाइल को चेक करना जरूर आना चाहिए, एज अ बीइंग एज अ विमेन और बीइंग एज अ लेडी, क्योंकि ये लड़कियों को या विमेन्स को बहुत ज्यादा आता है, टारगेट किया जाता है। बिकॉज एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं बोलूँ तो हमारा जो एज अ विमेन हमारा जो नेचर होता है थोड़ा सा ऐसा होता है कि अगर हमें कोई प्रेज करता है या हमसे कोई बात करने की कोशिश करता है तो हम इमोशनली जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। सो दैट्स वेरी कंसर्निंग नाउ डेज कि इतनी फेक फेक प्रोफाइल बन रही हैं, तो वी हैव टू नो दैट कि रियल प्रोफाइल है या फेक प्रोफाइल है। सो आई विल शो कि कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली डिजिटल बॉम्ब, जिससे शायद आप लोगों ने अभी ज्वाइन भी कर रखा होगा ये सेशन। सो डिजिटल बॉम्ब हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं या जितने भी चीजें हो रही हैं उन पे मोबाइल का यूज सबसे ज्यादा होता है। मोबाइल पे एक्सेसिबिलिटी हमारी बहुत अच्छी होती है, हमारे पास हमेशा होता है। जैसे हमें कोई एक व्हाट्सएप मैसेज आता है या कोई भी मैसेज आता है मोबाइल के थ्रू ही आता है। सो दिस इज आई कॉल इट डिजिटल बॉम्ब। जो अगर हमें चेक करना है कि हम कितना फोन यूज करते हैं, व्हाट इज आवर यूजेस, सो अगर एंड्रॉयड है आपके पास, यू कैन चेक दैट ग्रीन कलर का आइकन होता है। सो अगर वो आपको आइकॉन नहीं दिखता है, सो यू कैन ऑल्सो चेक इन सेटिंग दैट डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल। उस पे जाके जब आप चेक करोगे तो यू गॉट टू नो दैट कि कितने घंटे आप अपना फोन यूज करते हो या फोन आपको यूज करता है। सो यू कैन सी दैट प्रॉपरली कितने टाइम बीइंग पे आपने कौन सा एप्लीकेशन यूज किया है। सो आई विल दैट एडवाइज दैट कि आप सोशल मीडिया जो एप्लीकेशंस है उनमें टाइम सेट कर दीजिए बेसिकली, क्योंकि वो टाइम वेस्ट ही करते हैं कहीं ना कहीं। सो अगर आप टाइम लिमिट लगा देंगे, जैसे 2 आवर लगा दिया आपने इंस्टाग्राम के लिए या फेसबुक के लिए, सो 2 आवर के बाद वो एक्चुअली उस जो एप्लीकेशन है उसको वो ओपन ही नहीं करने देगा फोन। सो दैट्स ऑल्सो अ थिंग कि हम अपनी जो डिजिटल वेलबींग है उसका ध्यान रखें। एंड अगर आपके पास आईफोन है, आईफोन में स्क्रीन टाइम करके एक ऑप्शन आता है, यू कैन चेक देयर कि आपने कितना फोन यूज किया है। सो स्मार्टफोन एडिक्शन बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी को है आज की डेट में। अगर हम कहीं जाते हैं तो हम उस कॉन्सर्ट या चीजों को एंजॉय करने से ज्यादा फोटोज और वीडियोस बनाने लगते हैं। कभी हम लंच पे जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, दोस्तों से मिलने जाते हैं, तो हमारे सबके हाथ में फोन होते हैं। सो हम फ्रेंड्स को टाइम नहीं देते हैं, फैमिली को बहुत कम टाइम देते हैं। पेरेंट्स जब आते हैं जॉब से, ड्यूटी से, तो सारे अपने अपने फोन पे बिजी हो जाते हैं कि चलो दिन भर ऑफिस में काम किया है तो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। सो बच्चे भी आपको जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो बच्चे भी, यू कैन सी द थर्ड फोटो कि सारे पेरेंट्स बच्चे सब फोन पे हैं इस टाइम पे। एंड अगर कोई फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल में भी हम फोटो लेना, पोस्ट करना, मतलब करना चाहिए, अच्छी चीज है। बट दैट्स नॉट लाइक कि आप पूरे टाइम सिर्फ सोशल मीडिया को ही देते रहो। इंजॉय द फेस्टिवल, इंजॉय दैट लंच और डिनर, इंजॉय द फैमिली टाइम। देर इज सम रियल केसेस कि मोबाइल एडिक्शन का कितना बुरा इम्पैक्ट हो रहा है साइकोलॉजिकली। बच्चे जो है वो गुस्सा करते हैं या मर्डर तक कर रहे हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें फोन चलाने से रोका जाता है। तो यू कैन सी हियर कुछ बच्चों ने जो टेक्नोलॉजी है उसका भी मिसयूज किया, फोटोज मॉर्फ करके और सर्कुलेट की। ऐसा नहीं है पकड़े नहीं जाते, सब पकड़े जाते हैं, लेकिन एज अ किड लाइफ बर्बाद हो जाती है। अगर एक भी रिपोर्ट हुई, एफआईआर हुई, सो आगे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है उनके लिए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंटल इम्पैक्ट इस चीज का तो बच्चों पे ना हो। नाउ कम टू द सोशल मीडिया, इट्स हिडन इन्फ्लुएंस। हम जो भी देखते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, दिस इज साइलेंटली इन्फ्लुएंस अस। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आप लोगों ने अभी जो
केस है एक सुसाइड वाला भोपाल में, जिस लड़की की जो सास है वो वकील है, उन्होंने उसने सुसाइड कर लिया या मारा गया, आई डोंट नो। सो आप लोगों ने ये केस सुना है, हाई प्रोफाइल केस जो है? Yes, ma'am. The Dwisha Sharma case. All right, Visha Sharma. And the second one is that Cockroach Janta Party. So I would like to share that कि whatever we are watching in social media, so कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग को, हमारे को इन्फ्लुएंस करता है। हम जो सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, हम उसको ही सही मान लेते हैं, और वी आर लाइक कि हम उसी के जैसे सोचने लगते हैं। हमें वो काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर देता है। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी जो थी, तो वो काफी ज्यादा जो उसको हाइक मिला है वो सोशल मीडिया की वजह से ही मिला है। और जब पाक और इंडिया की वॉर हो रही थी, उस टाइम भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चीजें थी कि इतने प्लेन क्रैश हो गए हैं या जो भी ड्रोन्स हैं वो गिराए गए हैं। सो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं काफी इन्फ्लुएंस कर देता है हमारे दिमाग को। अब सोशल मीडिया की अगर बात करें तो बहुत सारी फेक प्रोफाइल सोशल मीडिया बनती हैं। ओवर शेयरिंग मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अननोइंगली हम अपना फोटो अगर शेयर करते हैं तो हम ये भी शेयर करते हैं हम कहाँ घूम रहे हैं, हमारे आसपास की चीजें। जैसे हम गोवा गए, हम गोवा के आसपास की चीजें शेयर कर रहे हैं, पीछे अगर कोई बोर्ड लगा हुआ है तो समवेयर हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वेयर वी आर। और इफ आई गिव अ एग्जाम्पल कि कोई एक स्कूल की फोटो अगर शेयर की गई है, आपका स्कूल ड्रेस है, उसमें आपका आईडी कार्ड अगर पहना हुआ है आपने, सो अगर ऐसी फोटो शेयर होती है तो किसी के लिए भी ये जानना बहुत इजी है कि ये कौन सी स्कूल है, कौन सी जगह है, और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपका नाम कहाँ है। सो समवेयर इट इज ऑल्सो कम्स अंडर ओवर शेयरिंग। एंड उसके बाद स्टार्ट होती है साइबर स्टॉकिंग, विच इज लाइक कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है और आपको समझ में भी नहीं आता कि समवन इज स्टॉकिंग यू, बिकॉज हमारी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल पे इतने सारे लोग होते हैं, सो मैनी आर आई थिंक, बहुत सारे लोग तो अननोन ही होते हैं ज्यादातर। तो अननोन कोई भी आपको किस नियत से स्टॉक कर रहा है तो वो आप कभी समझ ही नहीं पाते हो। आई विल शेयर सम केसेस। सोशल मीडिया इज समटाइम वी आर सेइंग दैट इट्स फन, टाइम पास के लिए हम यूज करते हैं, बट इट्स ट्रैप। व्हाई आई एम सेइंग दैट ट्रैप? सो फर्स्ट इज द स्क्रॉल ट्रैप। कोई भी डिनाई नहीं करेगा इस चीज से कि व्हेन वी आर यूजिंग दैट काइंड ऑफ सोशल मीडिया, सो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे कब निकल जाते हैं स्क्रॉलिंग करते करते पता नहीं चलता है। एग्री? Yes, ma'am. तो सेकंड इज लाइक, फॉलोअर और वैलिडेशन। लाइक मिलता है तो एक डोपामाइन रिलीज होता है हमारे माइंड पे, हमें बहुत अच्छा लगता है कि वाओ माय फोटो इज वेरी गुड और माय कंटेंट इज वेरी गुड। फॉलोवर्स बढ़ते हैं, 2, 4, 6, 10 फॉलोवर अगर आ गए हैं तो पूरा दिन बन जाता है हमारा, लगता है वाओ इतने सारे फॉलोवर्स आ गए हमारे पास। एंड वैलिडेट हम करते हैं उसी पोस्ट से, लाइक से और फॉलोवर्स से। जितने भी फॉलोवर होंगे सो वी आर लाइक कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारी पोस्ट बहुत अच्छी जा रही है। लाइक्स जितने ज्यादा आते हैं सो हमें ये लगता है कि वी आर वेरी गुड और हम सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितना ज्यादा हम टाइम स्पेंड करेंगे उतनी ज्यादा लाइक्स आएंगे, फॉलोवर्स आएंगे। आप लोगों ने वो जो बाइकर्स था उसका केस सुना था? UK 007 आई थिंक द आईडी। सो ही पोस्टेड दैट कि मेरे सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा फॉलोवर हैं बट रियल में मेरा कोई दोस्त नहीं है। सो अगर आप इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को भी देखोगे सो दे आर अलोन। सो हम अगर अपने 400 600 फॉलोवर्स को लेके उनमें अगर अपना वैलिडेशन ढूंढेंगे, सो दैट्स रियली अ ट्रैप। एंड थर्ड इज वर्चुअल लिव्स एंड रियल लिव्स। लाइफ होती है वर्चुअल लाइफ और रियल लाइफ। हम रियल में जैसे हैं, वर्चुअल में अगर हम रियल में दुखी भी हैं, सैड भी हैं या फिर परेशान भी हैं, तो हम रियल लाइफ में ये दिखाते हैं हम बहुत ज्यादा खुश हैं। सो बेसिकली दो टू different different kind of identity we have. एडिक्शन एंड शॉर्ट इन अटेंशन स्पैन। हमें याद भी नहीं रहता कि हमने पहली रील कौन सी देखी थी। हम बोलते हैं कि हम ना स्क्रॉल कर रहे हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ लिंक्डइन। अगर हम लिंक्डइन स्क्रॉल करते हैं, लिंक्डइन इज द बेसिकली प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, तो हम देखते हैं उस पे कि चलो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, इस पे तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। बट हम जब स्क्रॉल करते हैं उस पे भी, तो हम ये याद नहीं रख पाते कि हमने कौन सी चीज पहले पढ़ी हुई थी। तो अटेंशन स्पैम हमारा बहुत कम हो चुका है एंड वी आर एडिक्टेड टू दैट टेक्नोलॉजी।
एंड मेंटल हेल्थ पे ऑब्वियसली बहुत इम्पैक्ट आता है। अटेंशन स्पैम कम हो गई है हमारी, हमें चीजें याद नहीं रहती, और मेंटल हेल्थ पे इन चीजों का इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि इरिटेशन हो गई है लोगों को। लाइक कोई बात करने आता है तो वी डोंट हैव लाइक कि हम क्या बात करें। सोशल मीडिया पे हम लोगों से घंटों चैट कर सकते हैं, बट अगर कोई सामने आपके बैठा हुआ है तो आपको टॉपिक ही नहीं मिलेगा बात करने का। द एल्गोरिदम ट्रैप इज लाइक, सोशल मीडिया ऑब्वियसली एल्गोरिदम पे वर्क करता है, और एआई के आने के बाद तो एल्गोरिदम और ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। जैसे भी पोस्ट आप, पोस्ट की बात छोड़ो, आप जो भी बात करोगे, लाइक अगर हम कुछ खाने की बात कर रहे हैं, सो आप देखिए आपके इंस्टाग्राम पे सेम खाने पीने की चीजों का ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा, या उसी टाइप की रील्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। आप कहीं घूमने जाने की बात कर दो तो आपको काफी सारे ट्रेवल्स या उसी प्लेस का आपको एग्जैक्ट वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज एल्गोरिदम ट्रैप। हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें साइलेंटली एल्गोरिदम जो है वो ट्रैप कर रहा है इन चीजों को लेके। एंड सोशल कंपैरिजन ट्रैप, लाइक हमारे फ्रेंड्स अगर घूम रहे हैं तो हम जब देखते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि यार हमारी लाइफ कैसी है और इनकी लाइफ कैसी है। अब कम्स अंडर सोशल कंपैरिजन ट्रैप। साइबर थ्रेट्स, बहुत टाइप के साइबर थ्रेट्स होते हैं, बुलिंग, मॉर्फिंग, मालवेयर। सो ऑन दैट screen you can see that so many kind of cyber threats are here. अब बात करते हैं, दिस सेशन स्पेशली फॉर विमेन्स, सो व्हाई विमेन्स एंड चिल्ड्रंस आर वनरेबल। सो आई एम वर्किंग फॉर विमेन्स एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम। सो जितना मैंने काम किया इस फील्ड में, तो मुझे लगता है फर्स्ट इज लैक ऑफ डिजिटल अवेयरनेस। विमेन्स को और बच्चों को उतनी ज्यादा डिजिटल अवेयरनेस होती नहीं है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट, कई बार अनएम्प्लॉयड होते हैं लोग, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए चीजें ढूंढते हैं कि चलो सर्च करते हैं इंटरनेट पे, जॉब सर्च करते हैं कि डिजायरेबल जो जॉब है हमारी, या हमें जहाँ पढ़ना है, लाइक किसी और सिटी में आपको पढ़ना है, सो वो सर्च करते हैं, और कभी कभी वो मैसेजेस अगर आते हैं तो वहां ट्रैप हो जाते हैं। इमोशनल लोनलीनेस, क्योंकि हमारे पास रियल फ्रेंड्स नहीं होते हैं, सारे हमारे पास ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं। सो कहीं ना कहीं आदमी इंट्रोवर्ट बनता जा रहा है, इमोशनली लोनली होता जा रहा है। सो जब आपको कोई ऑनलाइन लाइक अप्रोच करता है और वो बोलता है कि यार आई अंडरस्टैंड योर कंडीशन, सो बच्चे और विमेन्स ज्यादा ट्रैप होती हैं। सो इमोशनल लोनलीनेस इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग। लास्ट इज डिजिटल एनोनिमिटी। सो जब एनोनिमस होता है कोई भी, लाइक जरूरी नहीं है कि आपको राजेश की प्रोफाइल से अगर मैसेज आ रहा है तो वो राजेश ही हो, या जो भी उसने मेंशन कर रखा है दैट आई एम इन आर्मी और वट एवर, तो जरूरी नहीं है कि वो आर्मी में हो या सामने वाला डॉक्टर ही हो। यू डोंट नो दैट हु इज बिहाइंड द स्क्रीन। सो digital anonymity is also a very concerning thing, and that's why women and children are vulnerable, because वो इन चीजों को आइडेंटिफाई कम कर पाते हैं, और टारगेट वैसे women एंड चिल्ड्रंस भी टारगेट ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज स्टॉकिंग इन साइबर स्पेस। कुछ केसेस की बात करते हैं रियल लाइफ स्टॉकिंग के बारे में। आप सबको पता है कि स्टॉकिंग होती है। स्टॉकिंग इज लाइक कि आपको कोई पीछा कर रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है आपकी प्रोफाइल से। सो फेक प्रोफाइल बनती है, उसके बाद आपको पर्सनल डीएम्स आते हैं। अकाउंट हैक कैसे होता है, लाइक अगर किसी ने कुछ बोला है कि यार मैंने कोई पार्टिसिपेट किया हुआ था किसी चीज में, आप प्लीज मेरे को वोट दे दो। सो आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो एंड योर फोन विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, योर अकाउंट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। हरासमेंट स्टार्ट होती है। कभी कभी हम ऑनलाइन चीजों को पोस्ट करते हैं या शेयर करते हैं, किसी फ्रेंड के साथ फोटो शेयर कर देते हैं या अपनी पर्सनल थिंग शेयर कर देते हैं, उसके बाद शुरू होता है मॉर्फिंग और थ्रेट्स या फिर अब्यूजिंग। टेक्निकल स्टॉकिंग, लाइक स्पाईवेयर यूज करते हैं कई लोग, स्पाईवेयर आपके फोन पे इंस्टॉल करा देते हैं और उसके बाद स्पाई करते हैं। लेट्स चेक द केस। एक केस था जिसपे एक पुणे का जो एक आदमी था, उसने दिल्ली की एक विमेन को 2 साल तक स्टॉक किया था, हेरास किया हुआ था। सो 2 साल तक वो चेक कर रहा था, और दो दो साल तक उस विमेन को उसने परेशान किया, क्योंकि उसने कुछ फोटोज शेयर कर दी थी। और उस जो आदमी था पुणे का, उसने बोला कि मैं आपकी फोटोज जो है वो पब्लिकली शेयर कर दूंगा, वायरल कर दूंगा। और कई लाइक इंटरनेट पे कई सारे पेजेस होते हैं, सो वहाँ उसने पब्लिक वॉल्स पे उस लेडी का पर्सनल नंबर शेयर कर दिया था। सो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी इन चीज से, और ये सब उसने किया था फेक अकाउंट से। सो फेक अकाउंट इसलिए यूज करते हैं ताकि लोग पकड़े ना जाए, बट समवेयर पकड़े जाते हैं, बट यू कैन सी दैट 2 साल में कोई कितना परेशान हो सकता है।
सेकंड केस इज साइबर इनेबल्ड ट्रैफिकिंग। सो ट्रैफिकिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, खासकर विमेन्स और गर्ल्स के लिए। सो गर्ल्स जब कनेक्ट करती हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, सो ये केस ऐसा है कि एक लड़की ने कनेक्ट किया कि कोई स्ट्रेंजर था सोशल मीडिया पे, वो स्मगलर था बेसिकली। उसने चैटिंग स्टार्ट की, थोड़ा ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट बना के फिर बोला कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगा। उसने मिलने के लिए बुलाया, और मिलने के लिए जब उस लड़की को दिल्ली बुलाया, फिर उसने उसको लाइक सेल कर दिया। सो यू कैन सी दैट ट्रैफिकिंग भी सोशल मीडिया के थ्रू कैसे हो रही है। नेक्स्ट केस इज इंस्टाग्राम फ्रेंडशिप। इंस्टाग्राम पे फ्रेंडशिप कर लिया था इस ब्लू कलर की शर्ट पहना हुआ है जिसने। सो द दिस इज द बेसिकली एक्यूज्ड। सो इसने क्या किया था, एक लड़की से फ्रेंडशिप की, उसका ट्रस्ट गेन किया, ट्रस्ट गेन करने के बाद उसने प्रेशराइज किया कि आप फोटो शेयर कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। तो वो ये बोलते कि यार भरोसा नहीं है तुम्हें, मैं तो तुमसे इतने दिन से बात कर रहा हूँ। तो बीइंग एज अ विमेन या फिर लेडी, इमोशनली मैनिपुलेट कर ले जाते हैं ये लोग। तो जब इमोशनली मैनिपुलेट कर लिया, तो उस लड़की ने फोटो भेजी, अपनी वीडियोस भेजी, प्राइवेट वीडियोस भेज दी उसने। और इसने काफी सारे फेक अकाउंट बना के उन अकाउंट पे उस लड़की की फोटोज पोस्ट की, और काफी सारे ऑब्सीन मैसेजेस भेजे, इवन डराया कि अगर तुम किसी को बताती हो तो मैं तुम्हारी फैमिली को हार्म पहुंचाऊंगा, या फिर किडनैप कर लूंगा, या फिर एसिड अटैक तक कर दूंगा। सो दैट्स ऑल्सो कंसर्निंग थिंग्स कि आप इंस्टाग्राम पे किसी से भी फ्रेंडशिप करते हो तो वो चीजें किस हद तक कहाँ तक जा सकती हैं। रिवेंज पॉर्न इज ऑल्सो अ वेरी ग्रोइंग थिंग। इस पे ज्यादातर लोग बताते भी नहीं है कि ऐसी चीजें हो रही हैं। You can see the news, these are real news. So पहली न्यूज अगर है, साथ में पढ़ने वाले लड़के ने शादीशुदा महिला का एआई से बनाया अश्लील कंटेंट। अगर किसी ने एक्सप्लिसिट कंटेंट अगर नहीं भी शेयर किया है अपना, तो देर इज एआई, और एआई के थ्रू फोटोज मॉर्फ की जा सकती है, बनाई जा सकती है, वीडियोस भी क्रिएट किया जा सकता है। तो इस केस में जो एक्यूज था उसने जो था रिवेंज लेने के लिए एआई का यूज करके फोटो वीडियो मॉर्फ की, और उसके बाद एक्चुअली क्रिएट की। उसके बाद उसने सोशल मीडिया पे शेयर की। और सोशल मीडिया, यू कैन से दैट एडल्ट वेबसाइट्स जो होती हैं उनमें सब्सक्रिप्शन होता है। सो सब्सक्रिप्शन पे उसने एक अकाउंट बनाया, और सब्सक्रिप्शन बेस्ड उसने लाइक 1 लाख रुपए तक उसने उसकी वीडियोस और फोटोज से लाइक कमाई की थी। सो ऑब्वियसली विक्टिम का जो रेपुटेशन है वो डाउन हुआ। किसी ने जब देखा कि आपकी वीडियोज या फोटोज ऐसी साइट पे हैं, उसके बाद इस लड़की ने कंप्लेन की। सो एक चीज याद रखना कि जो भी चीज इंटरनेट पे एक बार चली गई है वो पूरी तरह डिलीट करना इम्पॉसिबल है। अगर इंटरनेट से डिलीट भी हो जाती है तो यू नेवर नो किसने डाउनलोड की है, किसके फोन पे है। तो आप हर किसी के फोन से जाके डिलीट नहीं करवा सकते। सो दैट्स द थिंग कि whatever we are sharing in social media, so बी अवेयर दैट कि आप क्या शेयर कर रहे हो। अपनी फोटो भी आप अगर एक्सप्लिसिट नहीं शेयर कर रहे हो तब भी चीजें पॉसिबल है। डेटिंग के नाम पे तो बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं। एक थोड़ा सा ये अलग था एक्चुअली। किसी ने डेटिंग स्कैम, डेटिंग एक्चुअली साइट पे अपनी प्रोफाइल बनाई, उसे कोई मिला जिसकी प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छी लग रही थी, और उसके बाद उसने फेक प्रोफेशन अपना बताया दैट आई एम डॉक्टर, और मैंने काफी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप भी इन्वेस्टमेंट करो। और सेकंड जो पार्टी थी उसने इन्वेस्टमेंट की और उसका बहुत लॉस हो गया। सो इस तरह से भी बिजनेस चल रहा है डेटिंग स्कैम्स पे। नेक्स्ट इज सेक्सटॉर्शन। इस पे भी जो लड़कियां हैं वो कम रिपोर्ट करती हैं, कम बातें करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है रेपुटेशन हार्म हो जाएगा, या फिर कैसे बताएं, किसको बताएं, लाइक इन चीजों को कैसे बता सकते हैं कि यार ऐसी चीजें, हमारी फोटो वीडियो वायरल हो गई है। सो यू कैन सी द केस स्टडी। एक विमेन थी जिसका रियल में क्लोज फ्रेंड जो था वही उसे ब्लैकमेल कर रहा था, और उसने फेक आईडीज बनाई हुई थी। मैंने पहले ही बताया था, एनोनिमिटी इज द थिंग कि जिसकी वजह से ज्यादा क्राइम कर रहे हैं लोग। तो एनोनिमस हो जाता है इंस्टाग्राम पे, एक सुरेश रमेश कुछ भी करके आईडी बना दो आप। सो फेक आईडीज बना ली, आईडी से अलग अलग आईडी से थ्रेटनिंग करते हैं, ब्लैकमेल करता रहा वो 3 साल तक इस लेडी को। और उसके बाद फिर बहुत सारे पैसे भी ले लिए, और उसके बाद फिर इसने प्रोस्टिट्यूशन पे भी उस जो लेडी थी उसको फोर्स कर दिया कि आप प्रोस्टिट्यूशन करके पैसे दीजिए मुझे। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स कि
बीइंग एज अ गर्ल 3 ईयर क्यों हो गए, आप ये सोचो, क्योंकि वो विमेन जो है वो हिम्मत ही नहीं कर पाई बताने की या रिपोर्ट करने की, इसलिए वो 3 साल तक ब्लैकमेल होती रही। सो द थिंग इज कि वॉट एवर इट इज कि आपने कुछ भी चीज अननोइंगली आपको समझ में नहीं आया, अगर आपने कर ली, या तो आपको रिपोर्ट कैसे करना है, कहाँ करना है, ये पता होना बहुत जरूरी है, और टाइमली करना है, जिससे इतना 2-3 साल का टाइम ना हो कि आप परेशान भी हो, हरास भी हो, और आप एक्चुअली फाइनेंशियली भी आपका नुकसान हो। तो सेक्सटॉर्शन में जरूरी नहीं है कि जो दिखे वही रियलिटी हो, कभी कभी दिखती है फैंसी सी फोटो, फैंटेसी सी फोटो, बट रियलिटी कुछ और ही होती है। सो इन चीजों से बचने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने भी काफी सारे टिप्स दिए हैं, लाइक नेवर शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, और स्ट्रिक्ट सोशल मीडिया प्रिवेसी सेटिंग हमेशा करके रखनी चाहिए, एंड डेटिंग एप्लीकेशन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लाइक कि चेक करना चाहिए हमेशा, क्रॉस चेक करना चाहिए, एंड किसी भी अननोन की जो रिक्वेस्ट है, फ्रेंड रिक्वेस्ट है, वो एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए विदाउट वेरीफाइंग, एंड नेवर क्लिक ऑन अनवेरीफाइड लिंक, एंड डू नॉट एक्सेप्ट वीडियो कॉल, तो कभी भी एक्सेप्ट मत कीजिए। साइबर स्लेवरी, आप में से बहुत सारे लोग, मुझे बताया गया है कि शायद स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। सो जब स्टूडेंट जॉब ढूंढते हैं या वर्किंग प्रोफेशनल को कभी कोई ऐसा मैसेज आता है कि हमें फॉरेन, आपको फॉरेन में जॉब मिल रही है, आपका जो हमने प्रोफाइल चेक किया बहुत अच्छा है, एंड आपकी प्रोफाइल से हम इम्प्रेस है, तो आपको हम फॉरेन, कोलंबिया या मलेशिया बुलाना चाहते हैं। सो ये जो मैंने 2 एक्चुअली लड़कियों की ये जो डाली हुई है वीडियोज है, एक्चुअली ये अगर आपको ये देखना है कि ये कैसे ट्रैप हुई इन चीजों में, तो यू कैन चेक दैट, मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएगा आपको। सो सिंपली टाइप सोनल डी, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीजों पे ट्रैप हो जाते हैं। पढ़े लिखे लोगों को बुलाया जाता है और उसके बाद उनका वीजा पासपोर्ट रख लिया जाता है और उनको फोर्स किया जाता है कि आप कॉल कीजिए और आप लाइक साइबर क्राइम कीजिए, डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजों में, हेलो मैं यहाँ से बोल रही हूँ, पुलिस से बोल रही हूँ, या इन्वेस्टमेंट के लिए फोन आते हैं जो मैडम आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, इस तरह से, या फेक जो टास्क, जो मैसेजेस आपने पहले रिसीव किए हैं उस तरह के मैसेजेस भेजना, ये इनका काम होता है। उसके बाद व्हेन यू कॉल देम, तो कनेक्ट भी करते हैं, ये कॉल करते हैं, बताते हैं आपको प्रॉपरली। सो दिस इज कॉल्ड साइबर स्लेवरी, क्योंकि इनसे फोर्स करके काम करवाया जाता है। सो फेक प्रोफाइल बनती है, जॉब ऑफर्स आते हैं, लिंक्डइन पे भी आते हैं कई बार, क्योंकि इफ वी पार्टिसिपेट इन एनीथिंग, बहुत अच्छी चीज में अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट प्राइज आया, तो वहां भी आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी जॉब लग गई है, आपने फर्स्ट प्राइज जीता है। तो बी कॉशियस, लाइक कि कैसा ऑफर आ रहा है। अब ठीक है, हमें पता है कि साइबर स्लेवरी हो रही है, व्हाट कैन यू डू? सो फर्स्ट इज रिपोर्ट सस्पिशियस जॉब एड, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको दिखता है, लाइक फेसबुक पे है या इंस्टाग्राम पे है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहां पे रिपोर्ट ऑप्शन आता है। सो रिपोर्ट कीजिए। और अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में कोई कहता है कि विदेश में मेरी जॉब लग रही, फॉरेन में जॉब लग रही है, तो उनको जरूर बताइए कि ऐसी चीजें हो रही हैं, एंड जॉब ऑफर जो है उनको थॉरोली चेक कीजिए ट्रेवल करने से पहले। और अगर फॉरेन में है तो आप जरूर एक बार एम्बेसी जाके पता कीजिए कि ऐसी कोई जॉब है भी या नहीं। एंड फेक ऑफर जो होता है, फेक जॉब मैसेज कैन चेंज समवंस लाइफ फॉर एवर, क्योंकि ये लोग साइबर स्लेवरी में आपको आने भी नहीं देते हैं या अपने घर में फोन भी नहीं करने देते हैं। अब जॉब ऑफर्स आते कैसे हैं, यू कैन सी हियर, डियर यू हैव पास्ड आवर इंटरव्यू। अगर किसी ने इंटरव्यू दिया उसे तो लगेगा कि दिस इज रियल, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस लिंक, वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगते हैं, आपका फोन नंबर। तो जब जॉब की बात आती है तो आप कुछ भी गलत नहीं भरते हो, आप अपना फोन नंबर सही डालते हो, अपना एड्रेस सही डालते हो, अपना नाम सही डालते हो, अपना एड्रेस सही डालते हो। सो ये सारी चीजें ही स्कैमर्स को चाहिए होती है, एक्चुअली सामने वाले को ट्रैप करने के लिए, स्कैम करने के लिए। नेक्स्ट इज मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड स्कैम, these आर ऑल्सो ट्रेंडिंग। फिशिंग एप्लीकेशन, फेक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन, अभी ट्रांसपोर्ट के लिए या wedding.ap के स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो काफ़ी सारे एप्लीकेशन बेस्ड जो स्कैम है वो होते हैं, और वो बेसिकली मोबाइल के थ्रू होते हैं। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी दैट रोडवेज बस, और दैट SBI रिवॉर्ड, यूनियन बैंक, और वॉट एवर दैट इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल,
.apk. So these are also a scam, kind of a scam. You can see here ICICI Bank. Now check that WhatsApp. So I would like to share that अगर ऐसे कोई भी एप्लीकेशंस WhatsApp के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू या किसी थर्ड पार्टी लाइक गूगल पे ले जाता है आपको अगर कोई लिंक कि यहाँ से डाउनलोड कीजिए, तो कभी भी डाउनलोड मत कीजिए। अगर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से ही डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे काफी सारी चेकलिस्ट होती हैं। सो वहाँ पे हार्डली, वहाँ भी होते हैं स्कैम्स बट हार्डली है, चांसेस बहुत कम होते हैं। बट व्हाट्सएप पे अगर आ रहा है कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर ट्रांसपोर्ट या फिर वेडिंग के लिए कोई एप्लीकेशन, तो नेवर एवर इंस्टॉल दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन। इफ वी टॉक अबाउट व्हाट्सएप जॉब स्कैम्स, जो पहले मैंने सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया था, इस तरह से व्हाट्सएप पे जॉब ऑफर आते हैं, मुझे भी आते हैं बहुत सारे, कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपको हायर कर लिया गया है पार्ट टाइम जॉब के लिए। आप उनसे पूछोगे तो वो आपको जॉब क्या बताएंगे, यू कैन सी यूट्यूब में लाइक और सब्सक्राइब करना है, होटल का रिव्यू और रेटिंग करनी है, गूगल मैप पे रिव्यू डालना है, या मूवी रेटिंग करनी है। ये जेन्युइन लगते हैं एक्चुअली, लोग जब मूवी रिलीज करते हैं तो वो रेटिंग कराते हैं। बट ये स्कैमर्स ने ट्रिक यूज कर ली है कि अभी इस तरह की चीजें साइबर स्कैम करने के लिए यूज की जाती हैं। सो आप में से किसी ने कभी सुना है यूट्यूब लाइक और सब्सक्राइब वाली जॉब? बहुत सारे लोगों Yes, ने सुना होगा यूट्यूब लाइक 50 रुपीज पर वीडियो। सो ज्वाइन भी किया होगा शायद, जॉब की है ये वाली किसी ने, लाइक सब्सक्राइब वाली? नहीं मतलब बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले हैं लाइक कि मैडम मैंने कर लिया है, 50 रुपीज तो आ जाएंगे, तो 3 वीडियोस लाइक करके 150 रुपीज ले लिए हमने, और उसके बाद हमें पता है ये स्कैम है तो हमने लॉग आउट कर दिया, उसके बाद हमने रिस्पॉन्स नहीं किया। बट वो 150 रुपीज किसी विक्टिम के ही अकाउंट से आते हैं, और अगर 50 रुपीज या 150 रुपीज, 100 रुपए के लिए समटाइम्स आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो सकता है। सो आप फिर उस अकाउंट को यूज नहीं कर सकते, फिर अनफ्रीज या डी फ्रीज कराने का प्रोसेस बहुत ज्यादा सिरदर्द होता है। तो वो 100 150 के चक्कर में कई बार कर्नाटका से बैन हो गया या असम के किसी गांव से बैन हो गया या फ्रीज हुआ जो अकाउंट हमारा। तो वो 150 रुपए के चक्कर में अब आप वहां जाओ और वहां के पुलिस स्टेशन या फिर वहां के कोर्ट से अनफ्रीज कराओ अपना अकाउंट, तो वो बहुत लंबा पड़ जाता है। सो नेवर एवर ट्राई टू डू दिस काइंड ऑफ लाइक कि हम कर लेंगे ऐसा जॉब और उसके बाद फिर हम खत्म कर देंगे अपना अकाउंट। Last, next is account takeover. Sometimes we receive that kind of message that there is photo of your youth, or that there is something like your photo. So when we receive this kind of message in Telegram or in WhatsApp, so out of curiosity we click on that link. और जब हम क्लिक करते हैं so वो ऐसा, you can see that this kind of screen open, कि एक स्क्रीन ओपन होती है। सो दिस मैसेज कम्स अंडर दैट टेलीग्राम। अगर व्हाट्सएप पे है तो व्हाट्सएप पे ऐसे स्क्रीन लॉगिन हो, लॉगिन स्क्रीन ओपन होगी, और जब आप लॉगिन करते हो तो वो अकाउंट का जो एक्सेस है वो स्कैमर के पास चला जाता है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रेंडिंग स्कैम। नेक्स्ट इज, अभी केदारनाथ के लिए बहुत बुकिंग हो रही है, सो हेलीकॉप्टर बुकिंग सर्विस स्कैम इज ऑल्सो ग्रोइंग। सो always verify that which is real website for booking the helicopter. And next is बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल है, उनको ऐसे मैसेजेस आते होंगे, दिस मैसेज रिसीव्ड बाय समवन लाइक, मुझे एक मैसेज आया था, दिस इज ऑपरेशन मैनेजर एट लिंक्डइन, she messaged me like I am operation manager, like manager. So I checked that profile कि चलो चेक करते हैं, she is operational manager, तो operations manager क्या करती है? You can see here connections तो ठीक ठाक दिखे, but as a so she hasn't posted yet. सो जब कोई मैनेजर है वो भी लिंक्डइन का, सोशल मीडिया का, तो उसने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है, दिस इज लाइक suspicious. So always when someone send any job kind of things to you, always cross check that profile कि उसने क्या पोस्ट किया है, और काफी जो पुरानी उसकी पोस्ट है वो भी आप रिव्यू कीजिए। और
लाइक लिंक्डइन पे तो सब कुछ ही रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे चीजें जेन्युइन ही होती हैं, बट वहां पे भी फ्रॉड हो रहा है। नेक्स्ट इज सिंथेटिक आइडेंटिटी थेफ्ट एंड डीप फेक। डीप फेक के बारे में तो सबको पता है, एंड थैंक्स टू एआई इट्स वेरी इजी नाउ डेज, एंड too much concerning is for women and girl is this, the third one. There is so many website and very much applications are there, which needs one photo, only one photo, and then the application remove clothes from the image, from the photo, and पहले होता था morphing face अलग किसी और का और body किसी और की, but AI के through you cannot identify that it's not your photo. Like you can't prove that it's not your photo. You can see the Alia Bhatt photo, and the application remove all the clothes from the photo. So this is really very concerning for women and girls. Fake pornography. So obviously when we post any photo, we never know that कि कोई हमारी फोटो का या वीडियो का कैसे मिसयूज कर सकता है। सो कोई भी फोटो का स्क्रीनशॉट लेके उसे हाई डेफिनेशन में चेंज करके, और उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है जिन पे आप हाई डेफिनेशन कर सकते हो फोटो को, उसके बाद फिर ऐसी इमेजेस, पोर्नोग्राफिक इमेजेस जनरेट करा के शेयर करते हैं। सो यू कैन सी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है वो डीप फेक पोर्नोग्राफी के विक्टिम ऑलरेडी है। इफ आई सेड दैट आई प्रिविलेज टू मीट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, सो ये फोटो रियल लग रही है आप लोगों को? इज इट रियल? प्लीज Yes. रिस्पॉन्ड। Okay, this is a real photo actually. No, this is not real photo. This is just I only given my photo, and I just write a prompt कि मोदी जी के साथ एक गार्डन में फोटो बना दो. So the chat GPT given me this result. So जिसको पता है कि एआई है, एआई के थ्रू फोटो बनती है, वो तो भरोसा नहीं करेगा, उसे लगेगा ठीक है यार एआई है। बट जिसे नहीं पता है उसे लगेगा कि यार मे बी इट्स रियल। सो आई एम नॉट सेइंग दैट मोदी जी, आप किसी को भी ले लीजिए, लाइक इफ अगर कोई विमेन है या कोई लड़की है, उसकी शादी फिक्स हो रखी है और शादी फिक्स हुई है, किसी की लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, या फिर कोई रिवेंज लेना है किसी को, तो वो एक फोटो यूज करेगा उस लड़की की और किसी और लड़के की, और उसे ज्वाइंट करके एआई इमेज जनरेट कर देगा दो। सो हाउ कैन एनीवन प्रूव दैट दिस इज नॉट रियल फोटो? सो दैट्स कंसर्निंग। बहुत सारे ट्रेंड है हम फॉलो करते हैं, गिबली आर्ट, नैनो बनाना, लाइक सो मेनी ट्रेंड्स आर देयर। साड़ी ट्रेंड्स बहुत सारे लोगों ने आई बिलीव फॉलो किया हुआ होगा। सो ट्रेंड फॉलो करना इज नॉट बैड थिंग, फॉलो करना चाहिए, बट लाइक कि अपनी प्रोफाइल पे कुछ सेटिंग रखिए आप, ताकि लोग मिसयूज ना कर सके अपनी लाइक फोटोज का और वीडियोस का और इस तरीके के ट्रेंड्स का। So this is also an example, like I have given my one photo, this original photo, and you can see that this side चैट जीपीटी ने कितनी परफेक्ट फोटो बना दी है। नो वन कैन से दैट दिस इज एआई जनरेटेड इमेज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है एआई के जिसमें लिख के भी नहीं आता। चलो जेमिनाई पे तो लिख के भी थोड़ा आ जाता है साइड पे वाटरमार्क, बट इस फोटो में यू कांट आइडेंटिफाई दैट। तो जब तक यहाँ पे पीएम है तब तक तो ठीक है, बट अगर कोई टेररिस्ट यहाँ पे फोटो लगा दे तो बंदा लिटरली जेल चला जाए और वो प्रूव भी नहीं कर पाएगा दिस फोटो इज एआई जनरेटेड, क्योंकि एआई फोटो बनाने के लिए सिर्फ एक फोटो की जरूरत होती है, लेकिन उसको गलत प्रूव करने के लिए जो एप्लीकेशंस या जिन टूल्स की जरूरत होती है वो बहुत महंगे आते हैं, और उसमें भी रिलायबिलिटी का बहुत कम चांसेस होते हैं, लाइक होते भी है तो आप किससे बोलोगे? सो दैट्स कंसर्निंग। सो ऑलवेज शेयर योर फोटो, लाइक कि कहाँ शेयर कर रहे हो आप, किससे शेयर कर रहे हो और किस तरह की फोटो शेयर कर रहे हो। सो इन द एज ऑफ एआई इट्स very easy to make
this kind of photo or any kind of photo. So when we share any photo with the AI, तो AI हमेशा बोलता है, टर्म्स होती है उनके कि हम अपना डेटा ट्रेंड करने के लिए ये फोटो या जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वो स्टोर करेगा। कई बार हम पूरी की पूरी लाइक मेडिकल रिपोर्ट शेयर कर देते हैं। कई बार मैंने ऐसे देखे मेडिकल रिपोर्ट शेयर कर दी कि मुझे क्या बीमारी है। अच्छी भी चीजें, कई बार एआई अच्छे आंसर्स देता है, बट उसके मतलब दिस अगर सेंसिटिव कंटेंट है, कोई सीक्रेट कंटेंट है, तो वो शेयर नहीं करना चाहिए। अगर फोटो की बात करूं मैं, सो hidden data share, what hidden data share with photos? First is facial pattern, your body measurement, your fat or like slim, whatever kind of your body measurement, and biometric details. So how it's misused, like fake profile create हो सकती है, लोन फ्रॉड के लिए, फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए आपकी फोटो यूज की जा सकती है। लाइक सीतारमण जी का जो वीडियो था उसकी जगह में किसी की भी फोटो डाली जा सकती है। डीप फेक्स बन सकते हैं, एक्सप्लिसिट कंटेंट कोई भी बना सकता है एआई के थ्रू, और आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकते हैं। लाइक फेक प्रोफाइल अगर बनी है तो आपकी फोटो, आपका प्रोफेशन लगा के लोगों से बात कर सकते हैं। पैसे चाहिए, अभी तो पैसे ही लोग मांगते हैं, बट कई बार डिफेम भी करते हैं लोग। लाइक आप किसी प्रोफेशन में नहीं हो या फिर आप वीडियोस पोस्ट नहीं करते हो डांस करके या वॉट, तो किसी भी तरीके की फोटोज वीडियोज फेक प्रोफाइल बना के शेयर की जा सकती हैं। इंस्टाग्राम तो सारे लोग ही यूज करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे कैसे स्कैम्स होते हैं, यू कैन सी द फर्स्ट वन इज, एस्ट्रोलॉजर को दे दिए 6 लाख रुपए किसी ने, विदाउट वेरीफाइंग दैट कि ये है भी एस्ट्रोलॉजर या नहीं है। सेकेंड इज, फॉलोवर बढ़ाने के लिए लोग पैसे लेते हैं, और पैसे लेने के बाद पैसे तो चले जाते हैं, फॉलोवर नहीं बढ़ते हैं। सो दैट्स ऑल्सो गोइंग ऑन। लास्ट इज, इसमें तो मतलब मुझे लगता है 70% लोग ट्रैप हुए हैं कि ऐसा कोई पेज अपीयर होता है जिसपे बहुत सारे फॉलोवर दिखते हैं, और उसके बाद लोग ऑर्डर कर लेते हैं कि यार बहुत चीप रेट पे चीजें मिल रही हैं, एंड व्हेन यू ऑर्डर दैट, उसके बाद ये पेज हो जाते हैं डिलीट। सो कोई ट्रेस ही नहीं होता कि आपने कहाँ पेमेंट कर दी है, आपने कौन से पेज से ऑर्डर किया है। सो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर स्कैम्स, और इस पे बहुत सारे लोग फंसते हैं। सो ऑलवेज वेरीफाई दैट कि सिर्फ फॉलोवर देख के आप ऑर्डर मत कीजिए, जेन्युइन वेबसाइट या जेन्युइन पेजेस से ही ऑर्डर कीजिए। सो ऑलवेज चेक दैट कमेंट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। नेवर एवर बिलीव ऑन फॉलोअर्स। लास्ट इज फोन रिपेयर स्कैम्स। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आई हुई थी कि जिनमें जो गर्ल्स होती हैं, बेसिकली एक गर्ल ने रिपोर्ट किया था दिल्ली में कि उसने फोन रिपेयर के लिए दिया गया, और 3 दिन बाद उसे बोला गया कि आपकी फोटो लीक हो जाएगी, प्राइवेट फोटोज, क्योंकि फोन पे हमारे बहुत तरह की फोटोज होती हैं, वीडियोस होती हैं। तो जब हम रिपेयर के लिए देते हैं तो कई बार वो रिपेयर सेंटर वाले कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि जब वो लाइक केबल लगाते हैं, हम उन्हें पासवर्ड भी देके आते हैं, क्योंकि वो चेक कैसे करेगा सामने वाला कि फोन बना हुआ है या नहीं, प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। सो कई बार इस तरह से फोटोज वीडियोस कॉपी कर ली जाती हैं, हमारे सारे डेटा को कॉपी कर लिया जाता है। सो दिस काइंड ऑफ स्कैम्स इज ऑल्सो गोइंग ऑन। सो कभी भी अपना फोन अगर आप रिपेयर के लिए देते हो, सो ऑलवेज देर इज अ सोल्यूशन। सेटिंग पे जाके रिपेयर मोड ऑन करके दीजिए, ताकि एक्सेस कुछ चीजों का ही हो। आई थिंक दिस इज कम्स अंडर रिपेयर मोड, जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी सैमसंग पे है। तो आप चैट जीपीटी पे एक बार सर्च कीजिए, आपके पास जो भी फोन है, लाइक वन प्लस है या आईफोन है, आप उस पर चेक कीजिए कि इसका सोल्यूशन क्या है रिपेयर मोड का। जो लाइक कि अनदर थिंग हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारी जो गैलरी का एक्सेस है या और डेटा का एक्सेस है सामने वाले को ना मिल पाए, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे देगा। सो कभी भी अपना फोन शॉप पे देने से पहले ये चीज जरूर ध्यान रखिए। इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन हरासमेंट का। सो ऑनलाइन हरासमेंट, किसी को भी ऑनलाइन अगर परेशान किया जा रहा है या आपने कभी भी फेस किया होगा, तो फर्स्ट इज एंजाइटी या ट्रॉमा हो जाता है। हम ऑनलाइन एक्टिविटीज अवॉइड करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम दूर हो जाते हैं, अनसेफ फील करते हैं। और ऑब्वियसली जब समवन इज इन एंजाइटी, सो स्टडी और वर्क अफेक्ट होता है, कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, दैट कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, या मैंने तो गलत इंसान पे भरोसा कर लिया। लीगल प्रोटेक्शन है इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें यही नहीं पता कि लीगल प्रोटेक्शन है
लाइक अगर आइडेंटिटी थेफ्ट हो रही है या किसी ने चीटिंग इम्पर्सनेट कर ली है हमारी आईडी, तो हम क्या करें, या फिर प्राइवेट इमेज किसी ने शेयर कर ली है, तो उसके लिए भी काफी सारे आईटी एक्ट पे और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस पे काफी सारे ऐसे लीगल प्रोटेक्शंस हैं जिनको यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे प्रिवेसी सेटिंग कैसे करें? सो लिंक्डइन पे यू कैन टेक दैट स्क्रीनशॉट और आई विल शेयर दैट पीपीटी टू द लक्ष्य फाउंडेशन। सो दे विल शेयर दैट कि आपको प्रोफाइल कौन कौन व्यू करेगा उसे प्राइवेट रखना है। काफी सारी चीजें हैं, ऑप्शन यू कैन सी देयर कि आपको किन चीजों को प्राइवेट रखना है, किन चीजों को ओनली यू रखना है, एंड स्टेटस को नोबडी रखना है, एक्टिव स्टेटस, ताकि कोई ना देखे। इंस्टाग्राम पे प्रिवेसी सेटिंग जो होती है, तो अकाउंट हमेशा प्राइवेट रखिए फॉर स्पेशली फॉर विमेन्स एंड गर्ल्स, एंड सो नो वन कैन डायरेक्ट एक्सेस टू योर लाइक अकाउंट और फोटो वीडियोस। काफी सारे लोग हैं इसलिए अपना अकाउंट प्राइवेट नहीं रखते हैं, बोलते हैं फॉलोवर्स नहीं आते हैं या सब्सक्राइबर नहीं आते हैं हमारे पास, बट फॉलोवर और सब्सक्राइबर के चक्कर में प्रिवेसी को लाइक खतरे में डालना इज नॉट गुड थिंग। एंड नेक्स्ट इज मैसेजेस। मैसेज का रिक्वेस्ट आपको किससे आए। स्टोरी प्रिवेसी आप रखिए कि स्टोरी आपको कौन देख सकता है। कमेंट्स हमेशा आप लाइक ऑफ रखिए, हाइड रखिए, क्योंकि कमेंट के थ्रू लोग आपके मतलब फ्रेंड्स तक पहुंच जाते हैं। लाइक किसी ने पोस्ट की फोटो, तो कमेंट किसी ने कर दिया नाइस फोटो भाभी, या नाइस फोटो बेटा, थैंक यू आंटी लिख दिया आपने, तो जब कोई चेक करता है इस तरह के कमेंट तो उसे समझ में आ जाता है कि शी इज दैट, लाइक भाभी ये तो इसका ये रिलेशन है, या आंटी लिखा है लाइक तो ये एज में बड़ी है, या बेटा लिखा है, पापा मम्मी जो भी लिखा हुआ है, तो उससे आपके रिलेशंस का पता चल जाता है, तो दे कैन ऑल्सो ट्रैप देम। सो दैट्स वाई ऑलवेज हाइड दैट ऑफेंसिव कमेंट और एनी काइंड ऑफ कमेंट लाइक। फेसबुक पे हमेशा जो फ्यूचर पोस्ट है, फ्रेंड लिस्ट है, उसको ओनली मी करके रखिए ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी रीच ना कर सके कोई। एंड फोन नंबर ईमेल को ओनली मी करके रखिए। लोकेशन हमेशा किसी भी एप्लीकेशन पे हो, सोशल मीडिया पे हो, आप ऑफ करके ही रखिए। टैगिंग इज ऑल्सो कि आप टैगिंग को रिव्यू करके रखिए ताकि कोई भी आपको टैग करके डायरेक्ट आपकी पोस्ट ना कर सके। आप अगर रिव्यू करो, एक्सेप्ट करो, तभी वो पोस्ट आपके वॉल पे दिखे। व्हाट्सएप पे लास्ट सीन ऑनलाइन नोबडी करके रखिए। प्रोफाइल जो है वो कांटेक्ट पे ही शेयर कीजिए। कॉल्स साइलेंट रखिए अननोन कॉलर्स के लिए। लाइव लोकेशन कभी भी ऑन करके मत रखिए। एंड व्हाट्सएप पे वन मोर थिंग इज ऑटो डाउनलोड को ऑफ रखिए। पे भी जो पोस्ट है उनको प्रोटेक्ट करके रखिए और ऑब्वियसली लोकेशन ऑफ रखिए। डिसेबल जो स्ट्रेंजर्स डीएम्स होते हैं उनको डिसेबल करके रखिए। सो एक यूनिवर्सल रूल है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिए, वेदर इट्स लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और दैट एक्स और ट्विटर। बिकॉज जो पब्लिक वेब है उस पे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड अगर आपने पब्लिक कर रखे, अपना जो प्रोफाइल है वो प्राइवेट कर रखा है, तो उस पे कम लोग होंगे आपके पास, तो अकाउंट प्राइवेट रखिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखिए अपना। अननोन डीएम्स ऑफ रखिए, लोकेशन ऑफ रखिए, एंड टैग रिव्यू जो होता है उसको ऑन करके रखिए। सो नेवर रीयूज पासवर्ड। अलग अलग अकाउंट्स के लिए एक ही पासवर्ड यूज मत कीजिए, क्योंकि डेटा ब्रीच में अगर एक अकाउंट का पासवर्ड लीक हुआ तो एनीवन कैन गेस द सेकंड पासवर्ड, सेकंड अकाउंट पासवर्ड टू। एंड पब्लिक वाईफाई पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक बैंक डिटेल कभी भी मत डालिए। नेवर शेयर ओटीपी और वेरिफिकेशन कोड। कभी आ गया है फोन करके कोई पूछता है ओटीपी भेजा है मैडम शेयर कर दीजिए, या वेरिफिकेशन कोड आया होगा शेयर कर दीजिए, कभी भी वो चीजें शेयर मत कीजिए। अपने लॉगिन डिटेल लाइक कितने डिवाइस आपके लॉगिन हैं वो आप चेक करिए हमेशा। अननोन फॉलोवर या फ्रेंड्स होते हैं, वीकली आप बैठिए और चेक कीजिए कि अननोन आपके फॉलोवर्स कौन से हैं, या जिनके फेक प्रोफाइल आपको लग रही है तो उन्हें आप रिमूव कर दीजिए। और हमेशा अपने एप्लीकेशन और अपना जो डिवाइस है अपडेट रखिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात की जब मैंने, तो एक डेमो मैं बता देती हूँ आपको। सेटिंग जब आप ओपन करते हो व्हाट्सएप पे, ऑन थ्री डॉट यू कैन सी हियर सेटिंग। सेटिंग पे आप जब अकाउंट पे जाते हैं, अकाउंट पे देर इज टू स्टेप वेरिफिकेशन, यू कैन इनेबल इट। इनेबल पे आपसे 6 डिजिट पे
कोड पूछेगा कंफर्म करने के लिए, और उसके बाद बोलेगा एक ईमेल आईडी ऐड कीजिए। सो व्हेन यू ऐड दैट ईमेल आईडी, सो जब भी आपका अकाउंट कोई और लॉगिन करेगा या आप खुद भी लॉगिन करोगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे एक कोड जाएगा। व्हेन यू एंटर दैट कोड, देन यू कैन और एनीवन कैन दैट ओपन दैट अकाउंट। देन अब बहुत सारे स्कैम्स की बात कर ली हमने, अब ये बात करते हैं कि चलो किसी के साथ स्कैम हो गया है हमारे घर पे या हमारी फैमिली पे या हमारे फ्रेंड से, तो हाउ कैन वी हेल्प देम। तो फर्स्ट लिसन एक्टिवली कि उनके साथ हुआ क्या। कभी भी उन पर ब्लेम मत कीजिए, या तुम्हारी ही गलती है, तुमने क्यों बात की, जब तुम्हें पता है कि लोग इतने अननोन होते हैं। सो एनीवन कैन बी ट्रैप्ड। सो बिलीव एंड वैलिडेट कि ठीक है, होता है सबके साथ। अवॉइड विक्टिम ब्लेमिंग। सो जो मैंने बोला कि ब्लेम मत कीजिए कभी भी उसको, क्योंकि सामने वाला ऑलरेडी परेशान है, और अगर आप ब्लेम करते हो तो वो और परेशान हो जाता है और लोनली हो जाता है, किससे बोले। क्योंकि इफ समवन शेयर तो उसने कुछ बिलीव करके ही शेयर किया होगा आपसे। एंड रिस्पेक्ट देयर चॉइस, लाइक इफ दे वांट टू लाइक रिपोर्ट, सो आप उन्हें समझाइए कि आप रिपोर्ट कीजिए, आप उनके साथ जाइए। और अगर वो रिपोर्ट करना नहीं चाहते हैं, सो जो सेकंड ऑप्शंस होते हैं वो आप वो भी यूज कर सकते हो, लाइक कनेक्ट विथ रिसोर्सेज लाइक एनजीओ, या फिर जो ऑनलाइन चीजें हैं वहां आप रिपोर्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो रिसोर्सेज से। एंड आई विल शो दैट कि आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हो विदाउट गोइंग पुलिस स्टेशन। सो नो योर रिपोर्टिंग ऑप्शंस, तो पहला है ऑब्वियसली cybercrime.gov.in। ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, यहाँ जाके हम रिपोर्ट कर सकते हैं। 1930 पे अगर कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, 1930 पे आप 24/7 रिपोर्ट कर सकते हो। समटाइम्स इंगेज जाता है, बट लगातार ट्राई करते रहिए, कॉल लगती है और काम करते हैं ये। लोकल पुलिस स्टेशन पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं हम। लास्ट इज विमेन हेल्पलाइन नंबर 181 पे भी इमीडिएट सपोर्ट के लिए हम रिपोर्ट कर सकते हैं। बट द वन थिंग दैट डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। इफ यू लाइक थ्रेटनिंग का कोई रिपोर्टिंग करनी है आपको, तो आपके पास स्क्रीनशॉट होनी चाहिए कि किस अकाउंट से आपको थ्रेटनिंग हुई है, क्या थ्रेटनिंग हुई है। सो यूआरएल्स होने चाहिए आपके पास, तो डॉक्यूमेंट जरूर करिए। अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो कोई भी चीज, अगर व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आया है तो कई बार हम ब्लॉक कर देते हैं प्रोफाइल, तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए उसके बाद ब्लॉक कीजिए। सो स्क्रीनशॉट लीजिए मैसेजेस का, टाइम स्टैम्प्स का कि कितने बजे आया, क्योंकि आज के टाइम पे लाइक जैसा मैंने बताया एआई से भी जो मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, वो भी क्रिएट हो जाते हैं प्रॉपर। लाइक यू कैन नॉट लाइक आइडेंटिफाई दीज आर जनरेटेड बाय एआई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीप फेक पोर्नोग्राफी और नॉन कंसेंशुअल लाइक रिवेंज पॉर्न पे जैसी चीजें शेयर हुई कि किसी ने शेयर कर दिया फोटोज और उसके बाद समवन किसी ने वायरल कर दिया एक्सप्लिसिट कंटेंट जो है वो एआई के थ्रू बना के वायरल कर दिया, तो फिर कहाँ रिपोर्ट करें हम। तो फर्स्ट इज साइबर क्राइम पोर्टल पे रिपोर्ट कर सकते हो आप। सेकंड इज साइबर सेल जाके पुलिस स्टेशन पे जाके लाइक एविडेंस के साथ रिपोर्ट कर सकते हो। पुलिस स्टेशन ऐसे केसेस में बहुत कम लोग जाते हैं, सो यू कैन रिपोर्ट ऑन दैट साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। सोशल मीडिया पे, हर सोशल मीडिया पे रिपोर्ट ऑप्शन होता है, तो यू कैन लाइक क्लिक दैट ऑप्शन ऑन रिपोर्ट और उस पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। लास्ट इज स्टॉप NCII.org, जो लाइक आपकी इंटीमेट इमेजेस होती हैं उनको स्प्रेड करने से रोकता है, और वो पूरे इंटरनेट पे कहीं भी होगी। सो इट विल check that all internet, and it will remove all that photos videos to the whole from the whole internet. So stop org, जो stop NCII.org है, जब आप इसे टाइप करते हो तो ऐसा कुछ ओपन होता है पेज, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दैट क्रिएट योर केस, so this kind of something open that जो eligibility और whatever these are like, ये आपको एग्री कराते हैं। और उसके बाद फिर ये आप जो अगर फोटो भी अपलोड करोगे अपनी कि मेरी ये फोटो थी, तो वो उसका हैश, लाइक ये तो टेक्निकल टर्म हो गया, बट वो फोटोज स्टोर नहीं करते हैं या वीडियोज स्टोर नहीं करते हैं, और पूरे इंटरनेट से वो चेक करके सब कुछ डिलीट कराते हैं। स्टॉप NCII.org, यू कैन राइट दैट फॉर नॉन कंसेंशुअल। अगर आपसे किसी ने कंसेंट नहीं लिया है और आपकी लाइक इंटीमेट फोटोज या आपकी कोई भी तरह की
जो खराब फोटो है वो अगर डिलीट करानी है इंटरनेट से, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। फॉर मोबाइल सेफ्टी अगर एप्लीकेशन की बात मैं करूं तो एम कवच 2 डाउनलोड करके इससे स्कैन कर सकते हैं हम, अगर कोई एप्लीकेशन फोन पे सस्पिशियस है। सो इट विल फ्लैग कि ये जो एप्लीकेशन है ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है और सस्पिशियस है या ज्यादा परमिशंस ले रहा है। लाइक इफ आई गिव एग्जांपल कि अगर आपने फ्लैश लाइट इंस्टॉल किया या फिर आपने कैलकुलेटर इंस्टॉल किया किसी भी लाइक थर्ड पार्टी या कहीं से भी, सो अगर इट विल लाइक आस्किंग दैट परमिशन की कांटेक्ट या गैलरी का परमिशन चाहिए, तो किसी फ्लैश लाइट को गैलरी का परमिशन क्यों चाहिए या किसी कैलकुलेटर को गैलरी के परमिशन की क्या जरूरत है। सो दीज आर थिंग्स की कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो परमिशन जरूर चेक करिए एक बार। नेक्स्ट इज एनसीआरपी जो मैंने बताया cybercrime.gov.in। तो ये जो पोर्टल है वो कुछ ऐसा दिखता है। एंड द थिंग इज विमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम पे आप अपने नाम से भी रिपोर्ट कर सकते हो या एनोनमस रिपोर्ट कर सकते हो, लाइक आपकी कोई भी आइडेंटिटी वो आपसे नहीं मांगेंगे। सो विमेन एंड चाइल्ड के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। एंड फॉलो साइबर दोस्त फॉर साइबर हाइजीन अपडेट्स। जिसने भी फॉलो नहीं किया है प्लीज फॉलो दैट, दिस इज इनिशिएटिव ऑफ दैट होम मिनिस्ट्री। सो ये जितने भी तरीके के नए साइबर क्राइम है उसके बारे में अवेयर करते हैं वीडियोस से या पोस्ट से या फोटोज से। सो दिस दिस इज फ्रॉम ऑल प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर, ये हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। सो प्लीज this is my advice that please follow that cyber dost. And this all from my thank you so much for the session. If any questions regarding that topic you can ask. Thank you so much, ma'am, for such an enlightening session. This discussion has laid a strong foundation for all of us learners and practitioners. We are now opening the floor for questions from the participants. Participants, please drop your questions in the chat. If you wish to speak, kindly raise your hands. We will call you one by one. We will take as many questions as time permits. Question is there is Vanshita. Yes, please ask. Hello, am I audible clearly? Yeah, perfectly. Thank you so much. Thank you, first of all, ma'am, for the perfectly helpful session, which helped us understand various cyber crimes that are happening in and around every day. And I suppose that there are many women facing it and not reporting it. My query is, ma'am, that in case of us experiencing any kind of cyber harassment or anything, for example we get DMs on Instagram or anything on any social media platform, then my query is what should we report to the platform, or shall we contact the helplines, or shall we report it to the portal that you mentioned earlier? Because there are many portals and websites and even helpline numbers. There is so much confusion about what we should go with. In the DM, especially for DMs, you are asking for DM Yes, or ma'am. a platform. If Generally in DMs we get abuses. For example, or some people abuse us, or some people send some messages which are very disturbing, like that. got it. Completely got it that this is taken by many women. So actually, you can report directly to the platform if there is Instagram or Facebook option like report. So you can report there. Or if there is nothing like you are on, I think आप उस पे हो LinkedIn पे, Yes, ma'am. कैन फॉलो माय अकाउंट। मैंने उस पर शेयर भी किया है कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कैसे रिपोर्ट करना है। सो यू कैन ऑल्सो रिपोर्ट दैट।
और प्लेटफॉर्म्स के लिए सबसे पहले आप प्लेटफॉर्म पे ही रिपोर्ट कीजिए और दे रिजॉल्व दैट। आप अपने फ्रेंड्स से, 4-5 फ्रेंड्स से आप बोलो कि आप भी रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो, तो वो टेक डाउन कर देते हैं जब मल्टीपल रिपोर्ट्स आते हैं तब। सो जब मल्टीपल रिपोर्ट्स आते हैं तो दे विल ऑल्सो दैट टेक डाउन, क्योंकि जब भी आपको कोई अब्यूज करता है वो कभी भी अपने रियल अकाउंट से नहीं करता है, वो फेक अकाउंट से करते हैं। सो जब एनोनिमस आपको कोई भी होता है तो वो इस तरह की चीजें विमेंस ज्यादा फेस करते हैं। सो आप ब्लॉक कीजिए एंड नेवर एवर रिस्पॉन्ड दैट। वो माइंड करने की जरूरत ही नहीं कि सामने वाला आपको क्या बोल रहा है, क्योंकि वॉट यू आर यू नो बेटर। Yes, ma'am. तो दैट डिजिटल वेलबींग, आप मेंटल अगर स्ट्रांग रखोगे अपने आप को तो एनी वन इज व्हाट इज सेइंग समवन मैटर ही नहीं करता, बट रिपोर्ट जरूर करिए। सो अगर उसके बाद भी मल्टीपल अकाउंट्स, सो द लास्ट थिंग इज अकाउंट्स का जो लिंक है वो आप सेव करके रखिए और स्क्रीनशॉट सेव करके रखिए कि कौन सा प्रोफाइल था और उसने क्या क्या लाइक आपको अब्यूज किया हुआ है। सो जब आप मल्टीपल ऐसे सेव करके रखोगे तो आप जो साइबर क्राइम पोर्टल है वहां पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हो विद मल्टीपल लिंक्स एंड मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स। तो दे विल फिगर आउट। एक ही करोगे तो फिर वो इतना ज्यादा लाइक इम्पैक्ट नहीं करता है, बट इफ यू गॉट दैट मल्टीपल, सो दे विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। Okay, thank you so much, ma'am. Thank you. नेहा कल्याणी प्लीज। Good evening, ma'am. Am I audible, ma'am? परफेक्टली, प्लीज आस्क। Yes, ma'am. मेरा क्वेश्चन रिवेंज पोर्नोग्राफी से रिलेटेड था। तो आपने जो पोर्टल बताया था एनसीआई वाला, उस पोर्टल पे अगर हम लोग रिपोर्ट करते हैं तो मुझे टेंटेटिव टाइमलाइन जानना था कि कब तक रेजोल्यूशन मिल सकता है। देर इज लाइक ऐसा टाइमलाइन का नहीं है, बट दे ट्राई टू रिजॉल्व द इशू एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज लाइक यूएस ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो ऑल ओवर इंटरनेट कहीं भी फोटो या वीडियोज होती हैं तो दे ट्राई टू डिलीट फ्रॉम ऑल ओवर इंटरनेट, फ्रॉम एनी लाइक अडल्ट साइट पे भी होगा तो दे विल ट्राई टू रिमूव दैट। सो बट द थिंग इज कि एक पर्सनल एडवाइस है कि इन चीजों को इंटरनेट से तो डिलीट हो सकती हैं, बट इफ एनी वन डाउनलोड्स इन फोन एंड सर्कुलेट विद ग्रुप्स, सो इट्स वेरी हार्ड टू डिलीट विथ समवन पर्सनल फोन। तो हर कोई, पुलिस भी किसी के पर्सनल फोन पे जाके डिलीट नहीं करेगी कोई डेटा। सो नेवर एवर एनीथिंग लाइक, कितना भी कोई अच्छा फ्रेंड हो, सो वो कभी नहीं बोलेगा। अगर कोई बोलता भी नहीं है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है कि तुम फोटो नहीं शेयर कर सकती, एक तो आप बोल दीजिए कि नहीं है भरोसा। मतलब वो अगर अगर हम्म, है तो वो ना रहे, फ्रेंडशिप तो ज्यादा बेटर है। बट कभी भी इस ट्रैप में हम्म, कि मैं देख के डिलीट कर दूंगा वाली, कभी भी नहीं होता। लोग फ्रेंड्स को शेयर कर देते कि देखो यार इसने तो शेयर कर दिया। वो कई बार बैटिंग भी कर लेते कि बैट करता हूँ मैं कि ये फोटो मंगा के दिखाऊंगा। सो काफी सारी चीजें हो सकती हैं। नेवर नो दैट किसी की मेंटालिटी क्या है। नेवर एवर ट्राई टू शेयर एनी काइंड ऑफ लाइक एक्सप्लिसिट कंटेंट विथ एनीवन ऑन इंटरनेट। ओके मैम, मेरा ये क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि मुझे लिंक्डइन से एक लेडी ने अप्रोच किया था। शी वॉज फ्रॉम पाकिस्तान एंड शी फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ रिवेंज पॉर्न। ओके। So now she wants to know whether it's good to file a police complaint, which she already tried, but उनको वहां से कुछ रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो शी वॉज बिफोर के बहुत जगह पे ये उनके इंटीमेट चीजें डाउनलोड हो जाए, वो चाहती थी कि जितना जल्दी हो सके जो भी वेबसाइट्स है एडल्ट वेबसाइट्स है वहां से ये हटाया जाए। तो इसीलिए मैं पूछना चाह रही थी कि टाइमलाइन वाइज अगर आप कुछ सजेस्ट कर पाए जहाँ से क्विकली ये सारा रिमूव हो सके तो आई कैन सजेस्ट दैट लेडी अकॉर्डिंगली। You can definitely suggest that stopncii.org. That's genuine organization which removes, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स भी हैं कि वो आपसे मांग लेते हैं, आप फोटोज शेयर कर देते हो और उसके बाद वही सर्कुलेट कर देती है। सो नेवर एवर बिलीव ऑन एनी राइट, बट दिस इज जेन्युइन वेबसाइट। सो देखो, एक किसी एक के साथ केस नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के साथ केस होता है और दे जस्ट रिसीव मल्टीपल कंप्लेंट्स डेली एंड दे ट्राई सॉल्व एज सून एज पॉसिबल, वन बाय वन। लाइक वो ट्राई करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की लाइक कंप्लेन्स आती है उनके पास, तो थोड़ा टाइम लग सकता है बट डेफिनेटली वो रिजॉल्व हो जाता है इशू। सो यू कैन ओके मैम। कर दैट
stop.ncii.org. ओके मैम, और लास्ट क्वेश्चन ये था कि अनोनिमसली कोई रिपोर्ट कर सकता है क्या, अगर कोई चाहे कि उनके डिटेल्स बिना शेयर किए रिपोर्ट करना चाहे तो या पॉसिबल है? श्योर, एनोनिमस रिपोर्ट कर सकते हैं विमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए, तो ये डेफिनेटली लाइक ओपन ही ऐसा किया है गवर्नमेंट ने कि आप एनोनिमस रिपोर्ट कर सकते हो। बट आई विल से दैट कि आप अपनी आइडेंटिटी मतलब अपना फोन नंबर सब कुछ शेयर कर दो ताकि वो लोग आपसे कांटेक्ट भी कर सकें। तो देयर इज नथिंग लाइक का कभी गवर्नमेंट का ऐसा शेयर होता नहीं है। और अगर कोई चीजें हैं जिसे आप नहीं अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सकते हो, देन डेफिनेटली यू कैन शेयर दैट एनोनिमस कंप्लेन ऑब्वियसली कर सकते हैं आप डेफिनेटली। वो पुलिस वर्कआउट करती है, एनोनिमस पे भी करती है पुलिस वर्कआउट। इवन विमेन्स एंड चाइल्ड पे तो वो प्रायोरिटी देते हैं, लाइक जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है, नोडल एजेंसी, वो प्रायोरिटी देती है इन केसेस को जो विमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड होते हैं। सो यू कैन रिपोर्ट दैट। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। Any question is there, you can ask, or if there is no question, so simply Google. If there is, I think I have time, Abdul. Ma'am, participants, if you are having any questions, kindly ask Madam Speaker. If someone asks any question, अगर नहीं है कोई क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी, डीएम कर सकते हो आप लोग मुझे। सोनल डी इज माय नेम। अगर आप गूगल पे लिखते भी हो इट विल शो दैट माय प्रोफाइल्स, लिंक्डइन, इंस्टा, सब कुछ। सो यहाँ पे मैं एक चीज भूल गई थी शेयर करने के लिए, जिसपे आप चेक कर सकते हो कि कैसे आप फेक प्रोफाइल आइडेंटिफाई करोगे। सो आई विल शेयर दैट, लेट मी शेयर। आई होप स्क्रीन इज विजिबल। ओके, सो सिंपली ओपन गूगल। फोन पे भी कर सकते हो आप, तो गूगल ओपन करो आप। यहाँ पे ये है सर्च बाय इमेज। कोई भी प्रोफाइल जिससे भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो उस फोटो का। स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो, सेव कर लो, और उसके बाद जब आप जाते हो सर्च बाय इमेज, यू कैन चेक दैट एट अपलोड फाइल पूछेगा आपको। अपलोड करके आप जाएंगे डेस्कटॉप पे, लाइक मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा हुआ है एग्जाम्पल। मुझे ये फोटो आई हुई थी, मैंने आपको दिखाया था एक एग्जाम्पल पे। I just click that photo and I open that. You can check that photo. सर्च कर रहा है इंटरनेट पे कि कहाँ पे है फोटो। तो व्हेन आई चेक दैट कि ये फोटो कहाँ पे, यू कैन सी हियर लिंक्डइन, डॉक्टर विल्सन। तो दिस इज वेरी सिंपल ट्रिक कि अगर किसी ने भी इंटरनेट पे आपको रीच किया है और किसी ने कोई फैंसी मतलब फोटो उठाई है, तो किसी ना किसी की तो फोटो होगी वो, और इंटरनेट पे वो मिल जाती है इजीली। सो जब आप चेक कर लेते हो कि ये नाम कोई और है जिसने आपको रीच आउट किया है, और फोटो पे कोई और है, या कोई और प्रोफाइल किसी और नाम से बनी है, तो वहां पे आपको समझ में आ जाता है दैट्स नॉट जेन्युइन। सो दिस इज द सिंपल ट्रिक टू चेक दैट फेक प्रोफाइल। तो वो मुझे थोड़ा स्लिप ऑफ माइंड हो गया था। सो या दैट्स द लास्ट थिंग। Kindly provide us the slide. They will provide, sure, no problem. If any questions is there, so you can ask. I have 5 minutes more. एंड इफ देर इज नो क्वेश्चन काइंडली डीएम, और वहां पे भी आप पूछ सकते हो मुझसे। कोई भी इशू होता है, क्योंकि आई नो एज अ विमेन it's very hard to ask in front of many like persons, so you can ask personally. Lux Foundation, it's a really very good initiative, and you are doing really nice work. I really appreciate that. Question, Abdul, we can wrap up the session. Okay.
questions, ma'am. Please explain two-step verification process. I have explained in my question, I think. अभी प्रोफाइल रियल हो कि Thank you, ma'am, for addressing every question with such clarity and insight. Your guidance on privacy, safe online interaction, digital safety was truly valuable for all of us. With this enlightening session, we now come to the end of today's program. We sincerely hope that today's discussion proved informative, empowering, and thought provoking for everyone present here. On behalf of Naksh Foundation and Project Cyber Shield, we extend our heartfelt gratitude to Ms. Shonal D. Ma'am for conducting such engaging and insightful session for our Cyber Shakti course. Your practical guidance, awareness-driven approach, and valuable perspective on online privacy and digital responsibility have greatly enhanced our understanding of how to stay safe and confident in the digital space. We kindly request all participants to complete the post-assessment form by scanning the QR code displayed on the screen. Please note that the certificates will only be issued upon successful submission of the feedback form. With that, we conclude today's session. Stay aware, stay secure, and continue building safe digital boundaries. Thank you and goodbye. Down. Full flow. Okay, so